Hi friends, welcome back to our talk show from hardship to heartfulness. आपका बहुत बहुत स्वागत है. रोजमर्रा के जीवन में हम जब अनगिनत challenges से निकलते हैं. For example, currently we are facing that somebody has hacked our company's Facebook account, and it's been 2 weeks. We don't know who has done it. So I fail to understand why people do this. So this is one kind of struggle which we all face. And another kind of hardship or struggle we face, like if you are going through with your emotional turmoil, or maybe you're going through with divorce, or maybe you're facing some uh, health challenge or something else which is really taking your peace of mind. So for that we have a very special guest with us today, and we are going to discuss many hardship and many heartfulness stories with you. And we have a guest today. Her name is Miss Kavya Mahajan, and in spite of having her hardship, she has completed her qualification. She has done her graduation and master's in English. She has completed her B.Ed, and right now she's pursuing a diploma in गाइडेंस एंड काउंसलिंग. काव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो पर. Thank you so much, Madhuma, for inviting me. And it's such an honor to be part of this beautiful talk show that's named Hardship for Helpfulness. So thank you so much, ma'am, for inviting me in this talk show. Yeah. So, Kavya, I would like to ask you the very first question. Tell us about your health challenges which you have faced. She has gone through 8 different surgery, which is good, which she is going to brief us. Yes, ma'am. From the day one when I have taken birth in this world universe, so मतलब मेरी जिंदगी उस दिन से ही शुरू हो गई. With many pain, I was born with certain disabilities like one eye vision and for one eye hearing stage and move also. And I was also having a cleft palate. So within 4 months after my born, so I have undergone a first surgery. And that was so painful for me. जो मतलब एक छोटे से ओवर नहीं अगर मैंने इतना सहन करा तो लाइफ गोज बाय सेम एंड फिर एक टाइम आया कि मैंने अपने आप को यही बोला कि चाचा कोई बात नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ आपको यही चैलेंजेस आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आगे जाके एंड नाउ अब मुझे ऐसा लगता है सेकंड इज वेरी इजी कोई बात नहीं अगर आप आज बुखार भी है तो कभी ना काम समझेंगे एज यूजुअल राइट सो हेल्थ के में बहुत प्रॉब्लम्स रही है डिस्पाइट नाउ ऑल्सो आई फेस मेनी प्रॉब्लम एंड it's going it's a part of my life and still I'm making it like very nicely and making it very painfully now. Right. So, I would like to address over here that in spite of facing so many health challenges, she is not losing her smile. She is living with courageously. तो यहाँ पर ये यूथ स्पेशल सेगमेंट है. यहाँ पर मैं why I have chosen Kavya, so that each one of us, not only youth, each one of us should inspired by the hardship which has been given by God, and she's facing it till now. और ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी हार्डशिप मुझे नहीं लगता कि वो जीवन से बड़ी है. हर हार्डशिप या तो हमें डिवाइन के करीब लेके जाती है या अपने करीब लेके जाती है. आई वुड लाइक टू से सम इनकरेजेस वर्ड फॉर द यूथ कि देखो काव्या को, क्या कमाल की लड़की है और जैसा ये लगन से काम करती है. अ, मुझे लगता है कि अगर ये कर सकती है तो आप तो एबिलिटीज से भरे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते. So, Kavya, I would like to ask you the second question. What is happiness or success means to you? Happiness. Like for happiness, मैं ये कहना चाहूंगी
आज तक हम लोग भागे बाहर की हैप्पीनेस में की, बट ultimately happiness lies within us only, right? So I find happiness in me also, देखिए मैं कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स में ही मैं खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। जैसे अब मैं कल का एक एग्जाम्पल लूँ, yesterday I was very happy, वो कोई काम नहीं था, तो प्रेशर नहीं था, तो मैंने उस मोमेंट को मैंने ऐसे किया कि मतलब मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, आज कोई काम नहीं है, इस मोमेंट को हम जीना चाहते हैं। तो मैंने खुशियाँ ऐसे ढूँढती हूँ। आई डोंट फाइंड इन अदर्स कि मैं कोई आके बोले कि अगर चल यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, नो। आई फाइंड हैप्पीनेस इन मी ओनली, दैट्स एंड सक्सेस फॉर मी इज कि आप लाइफ में करते रहो, कुछ ना कुछ करो। The success ultimately comes, and I believe in that karma repeats. So मैं अपने कर्म अगर अच्छे रख रही हूँ, तो that repeat in a very positive way into my life. And I felt that कि मेरा जो कर्म है वो मुझे दे रहा है अच्छे उस रूप में. So I felt that also. Yeah. So beautiful she answered that happiness lies within us. तो अगर इतनी छोटी उम्र में काव्या को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि खुशी जो है वो हम सबके अंदर ही है, तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ हम सबको ढूंढ लेनी चाहिए, चाहे वो चाय पीने की एक चुस्की में हो, या किसी एक दोस्त से बात करने में हो, या नेचर वॉक करने में हो, या किसी पेट को सहलाने में हो. सो इट इज entirely depending upon us. Second thing which she said beautifully, that I don't wait for somebody कि मेरे पास कोई आए और वो मुझे खुशी दे. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ऑडियंस, प्लीज इस पे जरूर गौर करिएगा. The third question, Kavya, I would like to ask you, since you have a speech problem, you have many disability. I'm sorry, I'm not here to highlight these disability, because we are talking about the hardship. That's why I'm asking you that in spite of this, क्या लोग आपको बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Obviously, ma'am, ये को फैक्ट है जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल डेज, स्कूल लाइफ में सबके अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स थे. आई गॉट अ वेरी नेगेटिव कमेंट्स, बुलिंग. सो ये था मेरी लाइफ में और सबसे अलग ट्रीट किया जाता था मेरे को उस टाइम पे. तो वन डे कम दैट मतलब मैंने अपने आप को एक चीज बोली, Kavya, this is a part of life. You have to be your own version and you have to fight for yourself and you have to move on. So उस दिन के बाद सिंगिंग लाइफ में बहुत चेंजेस आए. मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की विद इलेक्टिव इंग्लिश, मास्टर, डिप्लोमा. Then I have done many ascent advancement course as well. तो इस यही लाइन ने मेरे को इतना इंस्पायर कर दिया और आज I'm currently sitting in front of you and like I'm speaking with you also. So एक चीज मैं यहाँ पे याद करना चाहूंगी, डिसेबिलिटी जो वर्ड है ना, वो खुद इस एबिलिटी वर्ड से बना है. तो दिस है वो हमने क्रिएट करना है. तो देयर इज नो वर्ड लाइक डिसेबिलिटी दैट एग्जिस्ट. Every human being, every person has his own ability and enormous potential to do things in their life also and achieve such goals as well. Right. So beautifully said that disability also carries the ability in you. And it's your mind which is creating the disability in you. No? So even the person who's able or who has many capabilities or abilities still feel the disable in their own mind, isn't it? हम अपने मन में कई शंका लेकर चलते हैं, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट लेके चलते हैं, तो उस पे हमें अपने आप से काम करना होगा, है ना? सो Kavya said very beautifully that you have to work on your skill set. जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यही बोलते हैं मेक इन इंडिया में, कि
अपने स्किल पर काम करो। तो जो व्यक्ति आज के दिन में अपने स्किल पर काम कर रहा है, वो अपने मन पे ऑटोमेटिकली विजय पाएगा ही पाएगा, क्योंकि आपके पास फिर बेकार की बातें सोचने के लिए समय ही कहाँ है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल सेट, इजंट इट? सो Kavya, I would like to ask you that now you have achieved certain kind of pace in your life. You know, you have completed most of your qualification. You have joined Inner Wellness, where you are contributing in many ways, and I'm so grateful to you. You are just like my daughter, and like now you have started living from the heart. The second part of this talk show is about the heartfulness, कि आप इतनी मेहनत करते करते, इतनी हार्डशिप सहते सहते कि आप जीवन में अपने दिल से जब जीने लगते हो. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस, हाउ टू लिव फ्रॉम द हार्ट? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैम। अ, अब देखिए कि मैंने अपनी लाइफ में ग्रो करा, तो देयर वाज़ अ काइंड दैट नो वन वाज़ विद मी एंड सो सबसे पहला जो शेयर वो मेरी फैमिली का था, जिन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि सागर यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू लिव अ शाइनिंग एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। तो मैंने जब जब मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ बोली ना कि काव्या तू जहाँ मर्जी जा एंड वी आर विद यू, तो ये बहुत बड़ी बात है जब आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। तो उस दिन से आई ने फुल्ली तो मैं अपने आप को बस ये कहती रही, काव्या डिटर्मिनेशन है तो यू विल अचीव इट। मैंने अपने आप को यही कहा कि आई हैव टू वर्क फॉर दिस, लाइक आई हैव टू गो इन वर्क विद इनर वेलनेस। कोई तो प्रोजेक्ट आया हमारे पास, प्रोजेक्ट था, सो मैं तो कहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, पर एक मोमेंट आया कि मैम ने मुझे समझाया एंड आई वर्क फॉर इट। तो अपने आप को बस इस ग्रेटफुल हार्ट के साथ मैंने जीना शुरू किया एंड मैंने सब नेगेटिव कमेंट्स को मैंने पीछे छोड़ के फ्रेंड करके सबको मैंने पीछे छोड़ा, मैंने अपने लिए जीना शुरू किया एंड टुडे द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो अपने लिए जीना शुरू किया मीन्स द सेल्फ लव एंड द ग्रेटफुलनेस और द ग्रैटिट्यूड. एंड another important thing she said, that's distraction, the negative, the person who's speaking about you negatively, or maybe your mind is diverting into the negativity. तो आपको उस नकारात्मक चीजों को, चाहे वो किसी के कमेंट्स है, चाहे वो किसी को somebody is criticizing you, or maybe your own mind is creating some kind of negative thoughts, तो आपको सब कुछ छोड़कर तभी आप दिल से जीने के योग्य बनते हो. इतना आसान नहीं है, पर मुझे लगता है सब कुछ संभव है. Everything is possible. So Kavya, what message would you like to give to the youth? Because in today's fast pace, there are many distractions. Social media is a big distraction. Then your own mind is a big distraction. And हर कोई सब कुछ चुटकी में पा लेना चाहता है ना? तो आप you are still a youth. What message would you like to give to the youth कि सब कुछ चुटकी में नहीं मिलता है? हमें उसके लिए संकल्प चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत चाहिए. उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? यस, हार्ड वर्क पेज ऑफ डेफिनेटली। मतलब एक अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो वो चीज़ कभी भी हासिल नहीं होगी। अगर आप वो हासिल कर भी लोगे, वो जो इनर सैटिस्फैक्शन है ना, वो आपको नहीं मिलती है। हाँ, एंड दिस आई हैव रियलाइज्ड आल्सो कि जो मेरा संघर्ष था लाइक फ्रॉम स्कूल लाइफ को टिल नाउ आल्सो, तो मैंने वो बहुत धीरे-धीरे और बड़ी मेहनत से पाया। अपनी सोसाइटी ने अपना ऑरा क्रिएट करा, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको काइंड लगता है। सो आई वांट टू से डोंट रश, wait for the right time and trust the almighty timing, because almighty timing is the best time। जो भगवान ने अपनी किस्मत में लिखा होगा वो खुद ब खुद चल के आ जाता है। उससे पीछे भागने से हमें वो चीज़ कभी भी हासिल नहीं होगी। एंड
I'm living with this inspiration and this thought. So this is my message to the youth. So live happy life, don't crush and stay calm. लाइफ में पॉज लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पॉज नहीं लोगे लाइफ में तो यू विल बी लाइक स्कैटर्ड थॉट्स, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी, लाइक मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। So we need to understand. So in this way we can live a happy life. Yeah. So, I would like to add very important point. When you're working from your wholeheartedly for any project or anything which you're working in life, जब आप काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो खुद के प्रति है या चाहे वो किसी कंपनी के प्रति है, I can assure you in this that divinity or the cosmic energy will also support you. अगर आप फ्री बैठे रहोगे, हर वक्त नकारात्मक दृष्टि से देखते रहोगे या सोचते रहोगे तो नेचर भी कैसे हेल्प करेगी, है ना? सो ये आपको समझना पड़ेगा हम सबको, चाहे वो यूथ है, चाहे वो एक प्रोफेशनल है, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, सो हम सबको अच्छे से करेजसली फेस करना है। तो काव्या, हमने सभी दृष्टिकोण से इस टॉक शो में बात की। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखते हो? मैं फ्यूचर में ऐसा देखना चाहूँगी अपने आप को दैट आई शुड बी अ लिविंग लेजेंड और मैं उन लोगों को इंस्पायर कर सकूँ आज के टाइम पे जो मेरे जैसे स्पेशल हैं। सो एंड फॉर आई वर्किंग विद स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो। सो मैं आई वॉन्ट लाइक कि जो हम जैसे लोग हैं वो इस वर्ल्ड में उनको एक वो वैल्यू दी जाए। सो मैं लिविंग एज अ स्पेशल एजुकेटर एज अ लिविंग लेजेंड देखना चाहता हूँ। कल को मेरे को ये कहे कि हाँ काव्य वो समवन इज देयर जिसने इनको मोटिवेट किया और आज वो यहाँ पे है। सो आई वॉन्ट दैट लोग शुड take us as a normal kind, a normal people, not as a disabled. Right, right. And I would like to request over here that, the way I have a faith in Kavya's intelligence, like I've seen beyond the body, I've seen her intellect, I've seen her soul, how pure she is. So I would like to request each professional, each industry that we should give a chance to these special people. हमें उनके मन और आत्मा को देखना चाहिए, ना कि उनके शारीरिक आवरण को देखना चाहिए। तो इसी के साथ ही हम इस टॉक शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। Thank you so much, Kavya, for giving us your special time, and God bless you.